So we were here. So I was telling about the indentation of the statements under the condition. So you will have to take care of the indentation because as soon as you put colon in the end of the condition and press enter, the cursor comes to the next line with some margin. The margin, which is by default, is two spaces, but it depends how many spaces you take for indentation. But whatever spaces you take for indentation, all the statements of that group or that paragraph should be aligned as per the indentation you have chosen. So if you have chosen one space from the left edge, then all the statements should begin with the first column or first space after the condition. And if you take four spaces, it is also fine. But this is recommended that whatever uh, column the interpreter takes by default, you should follow it. So that अगर आपको उस टाइम पर if you face any problem while uh, mismatching the alignment or the margin, you should not face any problem at that time. So better is as soon as you press enter and how the interpreter takes the margin, you should follow that margin only. So in this case, you will not face any problem of indentation because most of the problems are based on the indentation. तो आपने हमेशा ही इस चीज को लेकर के चलना है कि जैसे ही आप ये कॉलन लगा देंगे, कॉलन के बाद एंटर करते ही आपको वो यहाँ पर लेकर के आएगा। तो इंडेंटेशन के लिए वो टू स्पेसेस लेता है, तो आप भी इस चीज को देख लीजिएगा कि अगर इंडेंटेशन में जो भी आप कॉलम घटाना या बढ़ाना चाहते हैं तो पूरे ग्रुप के लिए होना चाहिए, केवल सिंगल लाइन के लिए नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि ये जो थ्री लाइंस है 1 2 and 3, these three lines are under this condition. If a greater than 999, then these three statements will be executed if the value of a is 999. And if it does not follow a greater than 999, it will automatically come to print over. So it depends on the user how many statements user wants under the condition. But the condition is कि जितने भी स्टेटमेंट्स यूजर चाहता है वो सारे के सारे अलाइंड होने चाहिए। अलाइंड का मतलब है सेम कॉलम से स्टार्ट होने चाहिए। दिस इज द मैंडेटरी कंडीशन। तो अगर कोई भी स्टेटमेंट इफ गोज बियॉन्ड द इंडेंटेशन देन इट विल डेफिनेटली गिव द एरर। तो ऐसा भी हो सकता है कि इफ के साथ में एक सिंगल स्टेटमेंट हो या इफ के साथ में मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो। तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स अगर होते हैं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ऑल द मल्टीपल स्टेटमेंट शुड बिगिन विद द सेम मार्जिन और सेम कॉलम नंबर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, now next program based on if condition, and suppose if you want to check the largest state of India, then this is the program. In this program, see, there is one variable, that is S, and we wanted to check the largest state of India, so we will have to check the value of the variable S with the largest state of the India. So largest state of India is Rajasthan. So if the value of S which you give
एस को जो भी वैल्यू देंगे, अगर वो वैल्यू, द वैल्यू ऑफ एस इफ मैचेस विद the state which you have mentioned in the program and which is Rajasthan. So state which is given by you is Rajasthan, then it will say correct. Otherwise, it will give the output like largest state of India is MP. जैसे आपने जब ये बोला, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल गया. If you give, since you have checked the value of S which is given by you, if the value of S is Rajasthan, then it will say correct. And somehow, in place of Rajasthan, if you have chosen MP, now you are checking the value of S whether this is Rajasthan or not. अगर राजस्थान होगा then it will say correct, और इसके अलावा कुछ होगा तो it does not say anything. I mean blank line. Like if S is equal to Rajasthan, then you'll see correct on the screen, and if you give any other value, then it will say nothing. Like here in the second output, you see type your answer in caps. So you are asking the largest state of India and you have given MP. So MP के केस में उसने correct यहाँ पर print नहीं किया because S is MP and you are checking whether this is Rajasthan or not. So MP is not equal to Rajasthan. That is why the condition is wrong. And when condition is wrong, this statement will not be executed. So it will print nothing on the screen. So conditional statement में आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रिलेशनल ऑपरेटर आप यूज कर रहे हैं वो उसको आप किस तरह से चेक कर पा रहे हैं, क्या वो रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो सही आपने लगाया है या नहीं लगाया है. केवल और केवल आपको कंडीशन चेक करते वक्त पहला जो केस होगा उसमें आपको ये चूज करना है कि विच रिलेशन ऑपरेटर शुड आई अप्लाई सो दैट आई कैन चेक माई कंडीशन ऑप्टिमली. ओके, अब आगे चलते हैं. सी हियर दिस इज अनदर, हालांकि ये क्वेश्चन मैंने भी आपको दिया था. ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि एंटर द कैंडिडेट्स एज एंड चेक वेदर ही इज एलिजिबल टू वोट. ओके, यस, तो दिया था. दिया था ना. सो दिस इज यस द सर. solution of this program. If a whatever you are giving uh, to age variable, this will be checked using if statement. So over here see, this is the identifier for age. ये age जो है हमने deliberately because we are getting the age from the user, तो age के लिए मैंने identifier choose करना था, तो I have chosen age as an identifier for the age. लेकिन ये जरूरी नहीं है, आप age की जगह कुछ और भी ले सकते हैं. एंड दूसरा, जो भी वेरिएबल आप आइडेंटिफायर लेंगे वही आइडेंटिफायर आपने चेक करने के लिए देना है. सेकंड, हियर आई हैव यूज्ड एज, दिस इज आइडेंटिफायर. सो यहाँ पर जो इनपुट स्टेटमेंट विच वी आर टेकिंग टू गेट द वैल्यू फ्रॉम द यूजर, एंड दिस value should be typecasted. Typecasted का मतलब ये है कि by default when you take input, only input, then it will take the value in the string form. Yani if I omit this type from here, the age will be of string type. And here we are checking this age with the number. With the number means numerical value. Numerical value means which is not in the quotes. So अगर मैंने इस int को हटा दिया तो age की जो वैल्यू होगी वो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में 18 होगा. तो इसलिए उसको न्यूमेरिक बनाने के लिए मुझे यहाँ पर ये टाइप कास्ट यूज करना पड़ा. अब ये क्या करेगा कि एज की जो वैल्यू इनपुट आप करेंगे, इफ दिस इज द नंबर, whichever number you give will be
converted into int. So देखते हैं एक बार इसको चला करके. So go to file and new, and the new में मैं a लेता हूँ, a की जगह पर a is equal to input, and here this is the age, and if age is greater than equals to 18, जैसे ही मैं यहाँ पर कोलन लगाऊंगा और एंटर दबाऊंगा तो ऑटोमेटिकली वो इस जगह पर पहुंच जाएगा. तो यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रिंट you are eligible to vote. फर्स्ट स्टेटमेंट, एंड दूसरा स्टेटमेंट होगा प्रिंट you can get the driving license. अब now see, save it, check age, run. I just say 20. So here this is the value. What happens in this case? This is a type error because greater than equals to not supported between instances of str and int, because 18 is integer and a is string, and that is why it is showing the type error. Okay, तो आपने क्या करना है कि जब भी आप प्रोग्राम करें तो उस टाइम पर आपको टाइप का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको वेरिएबल्स का ध्यान रखना पड़ेगा. तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इसको आपने टाइप कास्ट दीजिए, मतलब यू आर चेंजिंग द टाइप ऑफ द स्ट्रिंग and it is becoming integer now, and when you run this program, now it will give you the correct answer. Say age is say 21. Now it will print you are eligible to vote and you can get the driving license. Similarly, if you run it again and with age less than 18, then see what happens. If this is 15 only, then it will show nothing because we have not given anything. तो आप यहाँ पर चाहो तो एक स्टेटमेंट और दे सकते हो विच इज आउटसाइड ऑफ द स्कोप ऑफ द कंडीशन. वो ये यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ प्रिंट दे दिया, जस्ट सेड हैव ए नाइस डे. तो इन बोथ द केसेस व्हेन he or she is eligible to vote and to get the license, after printing these two statements it will print have a nice day, and if he or she does not qualify the criteria, then it will print only have a nice day. So here I am giving 15, so have a nice day, because
it does not specify the demand of the condition, and it should be 18, but it is not 18 and above. So it will say have a nice day. And when you say a value is greater than 15, then it will show you are eligible to vote, and then it will print have a nice day also, because this statement is outside of this scope, यानी if से बाहर है ये, और if के अंडर we have only two statements. So जब आप रन करेंगे तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स प्रिंट होंगे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो, because age is above 18, above and equals to 18. So in this case the program has to print these two statements: you are eligible to vote and you can get the driving license. And in case age is less than 18, then the condition will not be satisfied. When the condition is not satisfied, then it will come to have a nice day and skip these two statements because condition is false. Hope this is clear. Any question? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें? क्लियर सर। क्लियर है सर। अगर हम इस 18 को स्ट्रिंग बनाए तो वो तो पहले ही एरर आ गई थी। मतलब एज भी स्ट्रिंग हो और 18 भी स्ट्रिंग हो तो वो तो वैसे ही नहीं मैच करेगा कि दो स्ट्रिंग्स डिफरेंट हो गई। अगर हम इसको प्रोग्राम को यहाँ से इंट हटा देते हैं, ये हटा दिया, सॉरी, तो देखिए उस केस में आपको 18 ही देना पड़ेगा, तभी कंडीशन सेटिस्फाइड। एबव तो बात ही नहीं कर सकते आप, एबव की तो बात ही नहीं कर सकते। हालांकि हमने एबव भी लिया हुआ है, लेकिन जब आप रन करोगे, मान लीजिए मैंने 20 दिया, तो ये तो कंडीशन, जब आप ये वैल्यू दे रहे हो 20, तो आप मुझे खुद बताइए क्या ये तीनों आउटपुट आने चाहिए? नहीं आने चाहिए। वाई? बिकॉज वहां पर जो हम चेक कर रहे हैं वो 18 से चेक कर रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स, हमने केवल ये जो लिया है केवल और केवल आई थिंक 18 ही लिया है। यस, अगर मैं इसको हटा भी दूं, अगर मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिया और इसकी जगह पर जो मैंने रन करते वक्त जो वैल्यू दी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू,
Okay, your doubt is somewhat correct, but what is happening here? This condition, okay, let me run again. Strange. So it is taking string greater than equals to any both it is taking, but it should not take this because we have taken the value as a string and इसका मतलब ये हुआ कि if it is taking 18 uh, of the value of a, if we are giving the value 20 to a, it becomes a string. So ab string and 18b string, there should be definitely some error, but it is not showing. Maybe it is again taking the typecast just because of relational operators. Otherwise, it will not be true in all the cases like this. जो आप यहाँ पर ले पा रहे हैं इसको अगर आप आगे यूज करेंगे किसी और प्रोग्राम के लिए तो ये जो है लॉजिकली दिस इज इनकरेक्ट because age is a number and we are checking, let us see, एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 एंड ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी बिकॉज 1 अगर मैं 18 देता हूँ तो वो मैच नहीं करेगा, देन इट विल प्रिंट हैव ए नाइस डे। पर डेफिनेटली किसी न किसी प्रोग्राम में ये क्योंकि कंसेप्ट सही नहीं होगा, लॉजिकली ये करेक्ट नहीं है, तो आप यूज करके देख लीजिएगा। अदरवाइज अगर मैं इस चीज को यूज करूंगा तो मैं कभी भी ऐसे यूज नहीं करूंगा कि यहाँ पर मैं जब न्यूमेरिक वैल्यू कंपेयर कर रहा हूँ तो स्ट्रिंग वैल्यू कंपेयर करूँ। तो लॉजिकली इट इज इनकरेक्ट, बट इफ दिस इज गिविंग द करेक्ट आंसर तो इसका भी कोई रीजन होगा, दैट रीजन आई विल फाइंड आउट देन let you know, right? but Okay, sir. but the submission is, the advice is, you have to compare number with the number and compare string with the string. Otherwise, मतलब किसी न किसी केस में आकर के आपको ये लॉजिकली इनकरेक्ट है, लेकिन अगर सम हाउ इट गिव्स द करेक्ट आंसर, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार ऐसा ही करेगा। हो सकता है कि इस टाइम पर मेरे पास कोई एग्जाम्पल, सुटेबल एग्जाम्पल नहीं है सो दैट मैं इसको वेरीफाई कर पाऊँ, लेकिन डेफिनेटली जैसे ही कोई एग्जाम्पल आता है देन आई विल शेयर विद यू। ओके, बट यू शुड नेवर यूज number to compare to number with a string and string variable with the number, क्योंकि वो हमारी निगाह में इसलिए गलत है कि हमने जो कंपैरिजन करने का सोचा है उसमें हमें टाइप कास्ट, वो इंटरनल टाइप कास्ट अगर यूज कर रहा है, इम्प्लिसिट कर रहा है तो बात दूसरी है। अदरवाइज हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये जो गलत है, लेकिन क्यों गलत है उसका मैं आपको रीजन दूंगा, लेकिन आई विल हैव टू फाइंड आउट। ओके, Okay, sir. Okay.
बस ये है कि आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जो आंसर आपका आया है वो हर जगह के लिए सही नहीं हो सकता, लेकिन हाँ आप चेक कर सकते हैं। लेकिन रीज़न अभी यहाँ क्या आया कि सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक का ही कंसेप्ट दोनों के दोनों एक टाइप के होने चाहिए। जैसे कि अभी इससे पहले वाले एग्जाम्पल में जो ए था, इट वाज द स्ट्रिंग वेरिएबल एंड नाउ दिस इज द इंटीजर वेरिएबल। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो पर जब नंबर की बात हो तो नंबर ही यूज़ करें कंपैरिजन के लिए, और जब स्ट्रिंग की बात हो तो स्ट्रिंग ही यूज़ करें। अदरवाइज किसी ऐसे जंक्शन पर ये प्रॉब्लम आपको दे सकता है। ये छोटी प्रॉब्लम है तो इसमें कोई इशू नहीं देखने को मिला, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे केसेस में इशू देखने को नहीं मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो एडवाइजेबल है कि आप जो टाइप है वही यूज़ करें। ओके, Okay, sir. चलिए। ये आउटपुट गलत है, बिकॉज ये 12 देना था, 12 देना चाहिए था, और वो जो है 21 हो गया बनाते वक्त। इसके साथ ही साथ कंडीशन के साथ साथ अब हमारे पास एक नया सप्लीमेंट स्टेटमेंट आ रहा है। तो उस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि या तो हमारे पास जो कंडीशन आ रही है वो या तो सही होगी या फिर गलत होगी। तो इस कंडीशन के साथ में हमारा इफ भी आएगा, इफ के साथ साथ अगर कंडीशन सही होगी तो ये स्टेटमेंट चलेगा, अदरवाइज आपका ये स्टेटमेंट चलेगा। यानी या तो ये या फिर ये। अगर ऐसा है तो डू दिस, और ऐसा अगर नहीं है तो डू दिस। मतलब ये है कि इसको आप एक ही स्टेटमेंट में अगर कंडीशन को चेक करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि सीधी सी बात है कि या तो वो सही होगी या फिर वो गलत होगी। अगर सही है तो ये करिएगा और गलत है तो ये करिए। तो यहाँ पर अगर आपने सपोज करो कि एमपी दे दिया, एस की वैल्यू एमपी दे दिया, सो एमपी इज नॉट इक्वल टू राजस्थान, सो दिस कंडीशन बिकम्स फॉल्स, देन इट विल कम टू दिस स्टेटमेंट, इट इज राजस्थान। ओके, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, अगर आप राजस्थान एंटर करते हैं तो इट विल प्रिंट करेक्ट, और अगर आप राजस्थान प्रिंट नहीं करते हैं और एंटर करते हैं एमपी, तो उस केस में ये आपको मैसेज इट इज राजस्थान, लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, यू एंटर्ड एमपी, एंड सिंस दिस condition is wrong, then it will print it is Rajasthan. So इसका मतलब ये हुआ कि if this condition is satisfied then it will follow this, and if this condition is false then it will come to नहीं तो। अगर ऐसा है तो यहाँ, नहीं तो नहीं, else का मतलब है नहीं तो यहाँ। दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स एक ही कंडीशन स्टेटमेंट में आ जाएंगे। करके देखते हैं ये प्रोग्राम जो हमने यहाँ लिया है, और यहाँ पर एल्स में कहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं या इसके बाहर लगाऊं? सर बाहर। बाहर, राइट। सो बाहर का मतलब ये एल्स यहाँ लगेगा, एल्स, और एल्स के बाद भी कोलन आएगा, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली मार्जिन सेट करेगा, सो मार्जिन शुड बी हियर, और मैंने इसको लिख दिया प्रिंट हैव ए नाइस डे। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर जो एज की वैल्यू आप दे रहे हैं कोई और वैल्यू होगी, मतलब अगर बिलो होगी, 18 से बिलो होगी, तो वो ये यू आर एलिजिबल टू वोट और यू कैन गेट ड्राइविंग लाइसेंस, ये फॉलो नहीं करेगा, ये प्रिंट नहीं करेगा, और वो सीधा आ जाएगा हैव ए नाइस डे पर। अब इसमें से या तो ये दोनों प्रिंट होंगे या फिर ये प्रिंट होगा।
ये कब प्रिंट होगा? जब ए की वैल्यू लेस देन 18 होगी। और अगर इसके अलावा कोई भी ए की वैल्यू लेते हैं, मींस इक्वल्स टू 18 या अबव 18, तो उस केस में ये दोनों स्टेटमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। इस केस में हैव ए नाइस डे प्रिंट होगा, और दूसरे केस में अगर मैं इसकी वैल्यू 21 कर दूं, तो वो केवल दो ही स्टेटमेंट देगा, हैव ए नाइस डे इसके साथ प्रिंट नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि मेरे समझ से आपको ये कंडीशन लगाना आ रहा है धीरे धीरे, जैसे कि आप लोग Yes, डिस्कस sir. डिस्कस कर पा रहे हैं, इस हिसाब से आपको कंडीशन लगाना आ रहा है। तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम गिविंग यू ए स्मॉल प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम मैं आपको दे रहा हूँ, आप ट्राई करके देखिएगा। एंड दूसरी चीज़ ये है कि परसों से गूगल मीट में काफ़ी चेंजेस आए हैं। अब हर कोई स्क्रीन को शेयर नहीं कर सकता, यानी पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता जब तक होस्ट न चाहे। यानी जब तक मैं ना चाहूँ आप स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते। अगर मैं चाहूँगा कि आप स्क्रीन शेयर करो तो यू कैन शेयर। ओके, तो हाउ मेनी ऑफ यू आर यूजिंग लैपटॉप? सर दोनों। दोनों मतलब आप लैपटॉप भी यूज कर रहे हैं, मोबाइल भी यूज कर रहे हैं? यस। ओके, तो आपको एक Sir, छोटा I'm using laptop. ओके, मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम दे रहा हूँ, और प्रोग्राम ये है कि लिख लीजिए, एंटर थ्री इंटीजर्स enter three integers and find out the largest number। एंड माइंड कि मैंने यहाँ पर केवल और केवल रिलेशनल ऑपरेटर यूज करना बताया है, अभी लॉजिकल ऑपरेटर की बात नहीं की। लॉजिकल का मतलब आप एंड वगैरह, एंड और यूज नहीं करेंगे, केवल और केवल रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करेंगे। और मैं आपको जब, अगर जो लोग लैपटॉप पे काम कर रहे हैं उनके लिए मैं स्क्रीन शेयर करने की परमिशन दे रहा हूँ यहाँ पर। सर फिर से बोल दो एक बार। हाँ, बोलता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको शेयर करने की राइट दिया हुआ है, तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, और चैट भी दे सकते हैं। अगर यहाँ ये गूगल का नया फीचर उन्होंने ऐड किया है मीट के अंदर कि होस्ट कंट्रोल कर सकता है, यानी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। तो जो लोग भी इस प्रोग्राम को कर लेंगे वो अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि राइट ए प्रोग्राम टू एंटर थ्री इंटीजर्स, write a program to enter three integers and find the largest without using logical operators, without using logical operators। क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके, कीबोर्ड खराब हो गया किसका? ऋषभ यादव का। ठीक है, कोई बात नहीं। जो कर ले मुझे मुझे बता दे।
प्रथम जब क्लास ओवर होने वाली है तब आप आ रहे हो? There was a network issue, sir. So I was trying to rejoin. अच्छा, कहाँ कैंटोनमेंट में So, रहते हो? आर्मी एरिया में रहते हो क्या? sir. No, sir. No, sir. Davy Road. दिल्ली रोड पे सर तो यहाँ पर वोडाफोन बहुत ही ज़्यादा स्लो चलता है और ज़्यादातर फ़ोन बाकी लोग यूज़ कर रहे हैं तो मेरे फ़ोन में नेटवर्क प्रॉब्लम था बहुत बड़ा। मेरे को 3-4 बार स्विच ऑन ऑफ करना पड़ा। ओके। तो उसमें एक मैं सजेशन मेरा है कि देखिए, ये आज या कल की बात तो नहीं है कि आप एक दिन अगर आपका नेट नहीं चलता है तो कल दूसरे में काम कर लोगे। तो आपको एक कोई परमानेंट सोल्यूशन लेना चाहिए, और मेरे हिसाब से जियो का हॉटस्पॉट अगर ले सकें तो, एफर्ट कर सकें तो ले लीजिए, बिकॉज वो सस्ता ही होता है, ज़्यादा नहीं है कि एक बार आप उसमें दे देंगे तो आपका नेट चलता रहेगा और अच्छी स्पीड देता है वैसे। और जो वी ओके है, सर, आई विल ट्राई। वी मतलब वोडाफोन एंड आइडिया, इनका तो यस सर। इतना डिटेल में तो हम क्या बोलें कि इनकी नेट स्पीड होती नहीं है इतनी ज़्यादा। इसलिए अगर जो भी 4G डेटा आपके एरिया में मिलता हो उसकी सिम ले लें, वो यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। यस सर। ये मैंने सर आई विल ट्राई। हाँ, मैंने सजेस्ट किया है, बाकी आप देख लो। यस सर, डेफिनेटली। सॉरी अगेन। हाँ, दीक्षा, क्वेश्चन ये है कि कोई भी 3 नंबर्स आप एंटर करिए, मैं चैट बॉक्स में लिख देता हूँ। एंटर एनी 3 integers and print the largest। ये क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। सो नेस्टेड स्टेटमेंट्स भी यूज कर सकते हैं। ये चीज कहाँ से आ गई भी नेस्टेड? मतलब आप बहुत कुछ कर चुके हैं इसका मतलब। अगर नेस्टेड मैंने नहीं बोला है तो नेस्टेड यूज मत करो, ठीक है ना? ओके सर। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो सिंपल में ही आप अपनी टेक्निक अप्लाई करने की कोशिश करो। अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम बता देंगे। ए ओके, सही है। नाउ प्रिंटिंग द, केवल आप कंडीशंस लगाओगे ऋषभ? चलिए लगाइए, ठीक है। रात में कम कर दिया था 1 नंबर, इसलिए ख्याल लगा। क्या मैं कह रहा हूँ कि एसी जो है वो रात में 1 नंबर पे चल रहा था, इसलिए शायद ठंडा नहीं लग रहा। अरे बुरी हालत हो गई है, सो नहीं पा रहे थे। बता देते ना उठा करके। कोई बात वही मंगाया है आपने, मैक्स A, B, C। ऑप्टिकल पेन। समय से है मेरे पास, ऑप्टिकल पेन मंगाया। मेरे को क्यों ऑर्डर कर देते, मेरे को क्यों ऑर्डर कर देते? और वो उसमें एड्रेस पड़ा हुआ था तुम्हारे नाम का, तो मैंने उसी पे डाल दिया।
हाँ तो ऑर्डर करने से कोई चीज पहले बता दिया करो ना। वो उसका मैसेज नंबर मेरे पास आ You गया। have used library function max a comma b comma, लेकिन ये max ऐसे नहीं चलता है। मैक्स को चलाने का तरीका ये नहीं है, आपको जो है मैथ मॉड्यूल वगैरह इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अभी हमने जो चीज़ नहीं की है ना, उस चीज़ को आप इस्तेमाल मत करो। हमने आपको लाइब्रेरी फंक्शंस नहीं कराए हैं, तो उसको इस्तेमाल मत करो। आपको मैंने रिलेशनल ऑपरेटर्स कराए हैं, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करके करो। यस मुस्कान पांडे, वाई आर यू मम? स्वदी, प्रथम, do not hesitate to ask. Yes, sir. Hmm. सजल, सजल, अरे बेटा ऐसे कैसे? लैपटॉप इस तुम्हारा सपोर्ट नहीं करता पाइथन? वजह क्या है? कौन सा है लैपटॉप? मुस्कान, इंस्टॉल्ड फॉर 32 बिट। ओके, तो डू वन थिंग, कॉम्पैक्ट ठीक है। एक काम करिएगा, नेट चलता है आपके? नेट सपोर्ट करता है सिस्टम आपका? ओके, तो आप एक काम करिएगा, आप एक ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा जिसको मैंने शायद पहले ही बताया होगा, एनी डेस्क करके। एनी डेस्क, ये जो है आप इसको कर लीजिएगा, फिर हम देखते हैं आपका लैपटॉप में क्या इशू आता है। रात मैं इंस्टॉल कर दूंगा। मुस्कान मुस्कुरा गई। मैंने अभी भी, ऋषभ आप वहीं हो जहाँ थे। मैंने कहा था आप कोई लॉजिकल ऑपरेटर नहीं लगाएंगे, कोई लाइब्रेरी फंक्शन यूज नहीं करेंगे, लेकिन बिना लॉजिकल ऑपरेटर का आपका काम नहीं चला। आखिर आपने लॉजिकल ऑपरेटर लगा ही दिया। सर इफ तो रिक्वायर्ड होगा ये। नहीं, इफ तो है, पर लॉजिकल ऑपरेटर जो कंडीशन में आप ऑपरेटर लगा रहे हैं ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो वो चीज के लिए मैंने मना किया था, इसलिए वो आपने यूज किया, इसलिए मैंने बोला। तो चलो हम अपने प्रोग्राम पे चलते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। आई एम प्रोग्राम पे चलते हैं। तीन इंटीजर्स चाहिए मुझे। सो एंटर नंबर 1, सो यहाँ पर हो गए 2 एंड दिस इज नंबर 3 एंड इसको मैं कर देता हूँ B
से, और इसको हटा देता हूँ। और यहाँ पर हमने कहा कि हमें रिलेशनल ऑपरेटर ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो एक काम करते हैं, अच्छा एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ फिर इसको यहाँ अप्लाई करता हूँ। अगर दो कप्स हैं, एक में जो है एक कप का नंबर है ए और दूसरे कप का नाम है बी। एक का नाम है ए, दूसरे का नाम बी। एक में है कॉफी और एक में है टी। तो बी में टी है, ए में कॉफी है। पर गलती कर दी मैंने, मुझे क्या करना चाहिए था, जो टी है वो ए में डालनी चाहिए थी और जो कॉफी है वो बी में डालनी चाहिए थी। अब मैं इन दोनों को इंटरचेंज कैसे करूं? थर्ड कप। थर्ड कप ले सकते हैं ना? तो थर्ड कप में तो कोई इश्यू नहीं है। सेम हियर, मैं एक थर्ड वेरिएबल उठाता हूं। तो पहले मैं क्या करूंगा, क्योंकि जो रिलेशनल ऑपरेटर है एट ए टाइम दो ही ऑपरेंड्स पे अप्लाई हो सकता है। तो मेरे पास दो ऑपरेंड्स हैं, ए एन बी या बी एन सी या ए एन सी। फाइन। तो मैंने क्या किया, एक थर्ड वेरिएबल भी यूज कर लिया। तो मैं एक काम करता हूं, इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो जो थर्ड वेरिएबल है मेरा, दिस इज डी, डी में मैंने ए कर दिया, और नहीं तो एल्स डी इज इक्वल टू बी। यानी दोनों में से जो भी बड़ा है वो मैंने एक आपके हिसाब से एक थर्ड कप में डाल दिया। थर्ड कप में डालने के बाद अब मेरे पास केवल और केवल वास्तव में कंपैरिजन के लिए दो ही एलिमेंट्स रह गए, दैट इज डी एंड सी। सो इफ आई कंपेयर डी विथ सी, I can print the largest is comma D else print the largest is C। पता है इसमें कोई आपको इशू आ रहा है? न तो मैंने कोई लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया है और ना ही मैंने कोई इनबिल्ट फंक्शन यूज किया है, लाइब्रेरी फंक्शन यूज किया है। तो लेट अस सी व्हाट इज happening, what should be the output. So I am giving here number 1 say 45, number 2 say 65, and number 3 is 23. So this is the output. बात समझ में आई कुछ यस सर। सबको? Yes, sir. तो मतलब ये है कि कुछ Yes, sir. कुछ कॉन्स्टेंट्स हमारे एप्लीकेशन में हो सकते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हम लगा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाया कि आप कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर यूज नहीं करेंगे और आप कोई भी यूजर लाइब्रेरी फंक्शन यूज नहीं करेंगे। तो
उसके अलावा जो आपने सॉल्यूशन लिया, तो सॉल्यूशन में क्या है कि हमने दो कंपेयर किए, उनमें से जो भी बड़ा है उसको हमने थर्ड कप में डाल दिया, और थर्ड कप में या तो ए वाली वैल्यू जाएगी या थर्ड कप में बी वाली वैल्यू जाएगी। तो अल्टीमेटली हमारे पास कंपेरिजन के लिए एक वेरिएबल रह जाता है, दैट इज डी। तो डी यानी ए बी में से सिलेक्ट हमने डी में डाल दिया, कोई भी दोनों में से एक, तो डी एक वैल्यू हो गई और एक सी वैल्यू हो गई। तो हमारे पास इन दोनों में ही आपको रिजल्ट देना है। तो यहाँ मैंने चेक किया कि डी अगर ग्रेटर देन सी है तो डी लार्जेस्ट है, और अगर डी ग्रेटर देन सी नहीं है तो सी लार्जेस्ट है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। बस छोटी छोटी मतलब ये है कि प्रोग्रामिंग जो है वो मैंडेटरी नहीं होती। और एक चीज और हम बता दें, क्योंकि आप तो 10th क्लास में थोड़ा बहुत करके आए हैं, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं पड़ती। धीरे धीरे करके हमारा जितने प्रोग्राम्स ज्यादा हम करेंगे उतना ही हमारा स्किल रीजनिंग डेवलप होती जाएगी। तो ये कभी मत सोचिएगा कि मैंने प्रोग्राम दे दिया और आपने नहीं कर पाया तो यानी हमारा दिमाग ही नहीं चल रहा। नो, दिस कम्स विद द एक्सपीरियंस। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ये आपकी रीजनिंग आपकी सॉलिड होती जाएगी। ओके, सो दिस ऑल फॉर टुडे। सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय। Thank you, sir. स्किल फ्रॉम, ऑब्वियसली ये क्या बुक का नाम है, क्या बता रहे हो आप? स्किल फ्रॉम लाइट टू प्रोब, वेरी गुड, सही है। हाँ बिल्कुल ठीक है। पहले लाइट छोटी छोटी प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स करना सीख जाएंगे। कि जितने भी बड़े सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स हैं वो क्या डायरेक्ट प्रोग्राम करना शुरू कर देते हैं? वो शुरुआत ऐसे ही करते हैं। जब आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको यही प्रॉब्लम्स कराई जाएंगी। दैट्स वेरी गुड। ए एंड बी वगैरह आपने यूज किया है, बहुत अच्छी बात है, बट डू नॉट यूज एल, इफ, एल्स वगैरह। नो, अभी मत यूज करिए, जब हम बताएंगे तब यूज करिएगा। अभी छोटी छोटी पे करेंगे, कि अदरवाइज अगर आप कर लेंगे तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि वो नहीं कर पाते हैं, और तुम्हें कंडीशंस आती हैं एंड वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं, और हो सकता है उसको ना आती हों। इसलिए क्लास के साथ चलो, आप मुझे आउटपुट दिखाते जाओ, आई अप्रिशिएट। लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं उनको भी हमें पहले देखे चलना है। एनीवे, यू हैव डन वेल। आई वांट टू से दैट यूज ब्लैक स्क्रीन ऑफ आईडी। अरे वो क्या है, वो कर लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सीबीएसई ने आईडीएलई के अलावा और जो रिकमेंड किया है वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है। आप इफ यू वांट टू यूज देम देन यूज, अदरवाइज आईडीएलई इज द बेस्ट। ठीक है, तो उसका ब्लैक स्क्रीन ब्लैक अच्छा लगता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम करके देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी बाद में करते हैं।